Assalamu alaikum everyone, hope you're well, and in this video I'll explain you complete paper 3. This is especially for A2 economics students, and in this video I'll explain complete paper 3 November 2023 variant 3.2. So let's move on to the computer screen. Okay, so this is the question paper November 2023 exam series, and this is variant 3.2. The scheme is, I suggest you to stop the video and read the question carefully so that you understand what the question is asking, and then look at the solution, right? And the question is, the diagram shows total utility of consumers Y and Z. There are two consumers, one is Y and the other consumer is Z. When each consumes bars of chocolates, right? So this is consumer Y and this is consumer Z, and this is total utility. Keep in mind, many students basically omit this information. This is total utility, not marginal utility. And on X, we have quantities, number of bars. What is the difference between marginal utilities of consumers Y and Z? So difference is calculated as marginal utility gained by consumer Y minus marginal utility gained by consumer Z. This is how you can find out the difference. Okay, when each consumes 4 bars of chocolates. Okay, so this is 4 bars. So marginal utility is the additional utility that we obtain by using one additional unit of a product. So again, if we need like marginal utility at fourth unit, it means we will look into the change in quantity from 3 to 4, and then we will look into the marginal utility when we consume one additional unit of additional bar of chocolate. So 3 से 4 तक जब हम जाएंगे तो marginal utility y की कितनी और x की कितनी, दोनों को देख लेते हैं. Sorry, z की कितनी. So first of all हम z की for example देख लेते हैं, consumer z. So on the third unit, you can see that total utility was this much. Total utility was 45. So initially, total utility is 45. And on the fourth unit, you can see that total utility has decreased to 40. So marginal utility is calculated as change in total utility divided by change in quantity. So marginal utility of Z will be change in total utility of Z divided by change in quantity. So change in quantity is 1. From 3 to 4, it is change of 1. And marginal utility will be the change in total utility. So 45 minus 40 minus 45 will give us minus 5. So marginal utility will be minus 5 over 1 is equal to minus 5. So we got marginal utility of Z. So we can put it here. So we can put it here. Marginal utility of Z is minus 5. And this is negative sign. It will continue as it is. Now we have to find out marginal utility of consumer Y. So on third unit, total utility that consumer Y gains is 65. And when he consumes an additional unit, fourth, his total utility increases to 70. So 70 minus 65 is equal to plus 5. So marginal utility will be plus 5 for Y. So we can put this value here. So 5 minus into minus 5, because marginal utility of Z is negative. अब हम जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, while removing the bracket, we will multiply minus sign with minus sign, so it will become plus. So minus into minus is plus, so plus 5. So 5 plus 5 is equal to 10. So 10 is the difference of marginal utilities between these two consumers. I believe you understand this one. Moving to question number 2. When choosing to buy two products, the satisfaction gained by the consumption of different combinations of these two goods, two products, can be represented by an indifference curve. Which statement about such an indifference curve diagram is correct, right? So I'll explain the correct answer of this question. If you are confused, you may write in the comment box. I'll get back to you and explain to you why other options are not correct. So definitely, if I keep explaining each and every option, then definitely it takes a lot of time. So it's better if we focus on the correct option and try to understand why that answer is correct. So C is the correct answer here.
Why C is correct answer? Indifference curve never cross because this means that a consumer would be indifferent between combinations of two goods even when one combination provides more of each unit, right? So it is a basic property of indifference curve. Higher indifference curve gives higher satisfaction like this, and lower IC curve gives lower satisfaction. So this is higher IC, let's say it gives 100 units of satisfaction. This is lower IC, it gives 50 units of satisfaction. So lower IC gives lower satisfaction, higher IC gives higher satisfaction. This is the basic criteria of indifference curve or basic property of indifference curve. But when these two curves intersect each other, let's say we have indifference curve 1 initially and uh, indifference curve 2, right? So if both intersect each other, means they provide the same utility at this point. This is point A, let's say. And before that, IC1 gives more satisfaction because it is higher, and IC2 shows lower satisfaction because it is below the IC1. And after this intersection point, IC2 gives more satisfaction than IC1. So यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो बेसिक प्रॉपर्टी थी कि IC हायर IC gives higher satisfaction, लोअर IC gives lower satisfaction, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे डिस्टोर्ट हो जाती है और पॉइंट ए पे दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम. So इसलिए two IC curves never intersect each other or cross each other. So option C is the correct answer to this question. Question number 3 says negative externalities such as air pollution due to car emissions can cause damage to the people's health in cities, right? So which response is most likely to occur from this situation? Okay, so अगर negative externalities create हो रही हैं, pollution cause हो रही है, then what should be the response? Response will be intervention of the government definitely. तो इस केस में अगर लोगों की हेल्थ को हार्म करें emissions, कार्बन emission कार की वजह से, तो that should be there will be a need of government intervention. So option D is the correct answer. Some form of government intervention to improve economic efficiency. Right, so economic efficiency is जब हमारे पास marginal social cost और marginal social benefits equal हो जाते हैं. So this is marginal social cost, this is marginal social benefit, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को intersect करते हैं, ये economically efficient point होता है और यहाँ पे किसी किस्म की कोई externalities exist नहीं करती. लेकिन कार emissions की वजह से ज़ाहिर ओवर कंजम्पशन हो रही होती है. जब ओवर कंजम्पशन हो या ओवर प्रोडक्शन हो तो क्वांटिटी ऑप्टिमम से ज़्यादा होती है, एंड दिस एरिया शोज डेड वेट लॉस और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इन द सोसाइटी. अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड वेयर गवर्नमेंट विल इंटरवीन एंड मे इम्पोज टैक्सेस एंड मूव output from Q1 to Q2 so that economy moves back to its optimum point. ठीक है जी. सो बाकी सारी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे वो पे एप्लीकेबल नहीं रहेंगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं. Question number 4 says the merger of two large firms in the Singapore market supplying taxis and private hire vehicles resulted in a single firm with 80% of the market. The remaining 20% of the market consisted of thousands of independent taxi drivers. Which statement best describes that what has effectively occurred in the market structure? ओके, सो अब अगर देखें तो पहले लाइक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर था जिसमें देयर आर अ फ्यू सेलर्स, और जब जो बड़ी लार्ज दो फर्म्स थी लेकिन उन्होंने भी आपस में मर्ज कर लिया तो दे फॉर्म्ड अ मोनोपोली, राइट? सो इस सिचुएशन में हमें कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है? द मार्केट हैज चेंज्ड फ्रॉम एन ओलिगोपोली टू अ मोनोपोली. ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि पहले ओलिगोपोलिस्टिक था जिसमें फ्यू सेलर्स थे, लाइक दो बड़े लार्ज सेलर्स थे. वैसे तो ये डॉपली होता है एग्जैक्टली, लेकिन डॉपली भी चूंकि ओलिगोपोली का ही पार्ट होते हैं. ओलिगोपोली में देर आर फ्यू सेलर्स, डॉपली में एग्जैक्टली दो सेलर्स होते हैं. सो डॉपली भी ओलिगोपोली का ही पार्ट होता है बेसिकली. सो इनिशियली इट वाज ओलिगोपोली, व्हेन फर्म्स मर्ज तो दे विल फॉर्म अ मोनोपोली. मोनोपोली इज द सिंगल सेलर इन द इंडस्ट्री. सो बी इज द करेक्ट आंसर. जी, बाकी की ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकती हैं? बाकी की ऑप्शंस इसलिए नहीं होती क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन रेशो काफ़ी हाई थी.
अगर कंसंट्रेशन रेशियो हाई हो, लाइक मार्केट शेयर चंद बड़ी फर्म्स के पास बहुत ज़्यादा हो, तो ये मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव मार्केट नहीं होती, क्योंकि मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव मार्केट में देयर आर अ लॉट ऑफ सेलर्स एंड मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म इज वेरी लो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मार्केट शेयर काफ़ी हाई था। ओके, सो ये मोनोपोलिस्टिकली कंपैरेटिव भी नहीं था, परफेक्टली कंपैरेटिव भी नहीं था, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ सेलर्स सेलिंग सेम प्रोडक्ट, और उसमें भी मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म इज वेरी लो। Okay, so the market remains oligopoly. तो oligopoly में नहीं रहेगी, because now if the firms merge, they will form a monopoly position. Okay, so now moving to question number 5, the diagram shows the cost and revenue curves of a profit maximizing monopolistically comparative firm in the long run equilibrium. Again, read the question carefully, stop the video, and then look into the solution at the end. Which statement correctly describes the performance of the firm? अच्छा, अगर आप देखें तो equilibrium takes place where MC cuts MR at point this, where quantity is Q and price charged is P. और एक चीज और कॉमन अगर आप देखें तो एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो touching average revenue at this point, so it means price is equal to average cost at this point. अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस को देखें तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन होती हैं कि टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, प्राइस शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे चूंकि हमारी प्राइस और एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल आ रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस क्वांटिटी के ऊपर, तो इसलिए फर्म विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। सो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि एलोकेटिव एफिशिएंसी वहां पे होती है जहां एमसी एआर को कट करता है, इस पॉइंट पे। एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा, लॉस के लिए एवरेज कॉस्ट शुड हैव बीन हायर देन द प्राइस, यहाँ की होती है एवरेज कॉस्ट। और मेकिंग एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से नीचे होती है, इधर कहीं हो। सो ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Question number 6 says a firm changes its aim and chooses to produce where marginal cost is equal to, marginal revenue is zero, instead of where marginal revenue is equal to marginal cost. तो यहाँ पे अब फर्म क्या करिए, वहां पे प्रोड्यूस करिए जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, इंस्टेड ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट की इक्वालिटी जो होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है, बट नाउ फर्म इज प्रोड्यूसिंग व्हेन एमआर इज इक्वल टू जीरो। विच एक्सप्लेनेशन फॉर दिस इज नॉट करेक्ट? इट मीन के सारी ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, और वो कौन सी ऑप्शन है? दैट इज द फर्म विशेस टू गेन मोर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट गेन करना यहाँ पे फर्म का एम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, एम आर एंड एम सी शुड बी इक्वल। सो यहाँ पे जो वो बता रहे हैं कि एम आर इक्वल टू जीरो है रादर देन एम सी इज इक्वल एम आर, तो जब एम आर जीरो होता है तो ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की नहीं होती। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन ये नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। Question number 7 says a firm operating in the airline industry uses third degree price discrimination. अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है सेलिंग इट एट डिफरेंट प्राइसेस इन द डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं, सेपरेट मार्केट सेगमेंट्स होते हैं, इनकम बेस्ड भी हो सकते हैं, लोकेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटोरस मॉल में एक चीज़ एक्सपेंसिव मिल रही होगी, वही चीज़ आपको संडे मार्केट में सस्ती मिल जाएगी, सदर में चले जाएंगे वहाँ पे मे भी सस्ती मिल जाए। सो दिस इज काइंड ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वेयर डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज बेस्ड ऑन locations or based on the income levels of the consumer. So option D is the correct answer. The firm is able to keep different market segments separate. ठीक है, so option D will be the correct answer for question number 7. बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपकी डिफरेंट सेगमेंटेशन की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ लोकेशन या डिफरेंस ऑफ द इनकम ग्रुप विजिटिंग देयर। ठीक है बेटा, सो डी आंसर होगा, बाकी ऑप्शंस को हम चूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई और ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज करी, तो यू कैन राइट इन द चैट, आई विल एक्सप्लेन यू। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मॉरल हैजर्ड?
राइट। सो नॉट के वर्ड को आपने फोकस करने। मॉरल हैजर्ड होता है कि जब आप अपने किसी भी डिसीजन की वजह से इंसुलेटेड होते हैं, मीन आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं पड़ते अगर कुछ इफ समथिंग बैड हैपन्स। जैसे डॉक्टर पेशेंट के केस में होते हैं, डॉक्टर्स अगर गलत प्रेस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं तो डॉक्टर को कोई तकलीफ नहीं होती, मसला नहीं होता। तो इसलिए दिस इज काइंड ऑफ मॉरल हैजर्ड। अगर जो पेशेंट को तकलीफ होती है डॉक्टर की गलत प्रेस्क्रिप्शन की वजह से, अगर उसका इम्पैक्ट डॉक्टर पे भी शिफ्ट हो सकता है, तो डॉक्टर कभी ऐसा डिसीजन ना लेता, बहुत केयरफुली डिसीजन लेता। लेकिन जनरली डॉक्टर्स इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और फटाफट प्रेस्क्राइब कर देते हैं मेडिसिन में भी, वो सही डायग्नोज ना करें उस चीज़ को। तो ऐसी सिचुएशन को मॉरल हैजर्ड कहते हैं, when one person is completely insulated from the harmful effects of his decision। तो इसमें सारे के सारे मॉरल हैजर्ड हैं, सारे बाकी ऑप्शंस भी। एक है जो मॉरल हैजर्ड नहीं है, और वो है ऑप्शन ए। पीपल विद हाई रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर मोर लाइकली टू अंडरटेक ट्रेनिंग। देखिए, अगर किसी को ज़्यादा रिस्क होगा अनएम्प्लॉय होने का, तो वो क्या करेगा, ट्रेनिंग लेगा। तो ये लाइक मॉरल हैजर्ड नहीं है, क्योंकि ही इज़ नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी केसेस में इंसुलेटेड है। कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ से। तो ऑप्शन ए वैसे करेक्ट आंसर है, लेकिन कोई एक और ऑप्शन मैं बता देता हूँ। पीपल विद फ्री डेंटल केयर आर लेस लाइकली टू टेक केयर ऑफ देयर टीथ विद गुड ओरल हाइजीन्स। जी। सो अब इस केस में क्या हो रहा है कि क्योंकि पीपल आर लाइक इंसुलेटेड, कि अगर उनका कोई टीथ इशू हो जाता है तो दे कैन गेट फ्री डेंटल केयर। तो दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम देयर लाइक काइंड ऑफ एक्शन। तो इसलिए वो हाइजीन्स का ख्याल नहीं रखते, दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर खराब हो गया तो ट्रीटमेंट मुफ्त है। दे आर इंसुलेटेड हियर, सो दिस इज मॉरल हैजर्ड। इसी तरह से इंश्योरेंस, पीपल विद इंश्योरेंस अगेंस्ट कार थेफ्ट आर मोर लाइकली टू पार्क देयर कार्स इन हाई क्राइम एरियाज। अब यहाँ पे भी इंसुलेटेड है वो, उन्हें पता है कि अगर कार चोरी होगी तो इंश्योरेंस मिल जाएगी, इसलिए वो ऐसा केयरलेसली डिसीजन ले रहे होते हैं। ऐसे एरिया में कार पार्क कर देते हैं जहाँ पे क्राइम रेट ज़्यादा हो सकता है। अगर वो इससे इंसुलेटेड ना होते, रिकवर इंश्योरेंस कवर उन्हें ना मिलता, तो फिर डेफिनेटली वो केयरफुल होते। सो दिस इज काइंड ऑफ मॉरल हैजर्ड। ठीक है, बाकी भी इसी तरह से ऑप्शन ए जो है मॉरल हैजर्ड नहीं है, बाकी सारी मॉरल हैजर्ड की एग्जांपल्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इन रिसेंट इयर्स द फ्यूल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ जेट एयरक्राफ्ट हैज डिक्लाइन। फ्यूल कॉस्ट कम होगी, तो ये बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट होती है। फ्यूल कॉस्ट सारे जो जेट ओनर्स हैं उनको पे करना होगा। तो अब अगर फ्यूल कॉस्ट कम हो रही है तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कम हो जाएगी। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कम होती है तो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ओवर द सेम पीरियड इम्प्रूव डिजाइन हैज लेड टू मच क्वाइटर एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट अगर नॉइज फ्री है, क्वाइटर का मतलब है कि नॉइज फ्री। जी, नॉइज फ्री है तो इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। सो मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट का कर्व भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A downward shift of both marginal private cost and marginal external cost curves. Question number 10 says firm K operates in a comparative market. Firm L is a monopoly employer. Both firms are operating at an equilibrium level of output. ठीक है, सो मोनोपोली सिंगल सेलर को कहते हैं, परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट को कहते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज्यादा हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स बहुत ज्यादा हो। Okay, so trade union are introduced with the result that wages in each firm are increased. What is likely to effect on each firm if trade union enters the labor market? जी, सो अगर लाइक मोनोपोली फर्म्स होती हैं, तो मोनोपोली अगर फर्म ज़्यादा चार्ज करेगी वेजेस, तो परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट विल डिक्रीज। तो ऑप्शन ए और बी में से कुछ हो सकता था, ये दो ऑप्शंस हम क्रॉस कर देते हैं। फर्म एल में एम्प्लॉयमेंट जो होगी दैट विल इंक्रीज। फर्म एल बेसिकली मोनोपोली है, दिस इज मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। और फर्म के जो है दैट ऑपरेट्स इन कंपैरेटिव मार्केट जहाँ पे देयर आर सो मेनी सेलर्स। ठीक है, ओके। सो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि ऐसा होगा क्यों टेक्निकली, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है, और एक्स में हम लाइक क्वांटिटी ऑफ लेबर या एम्प्लॉयमेंट ले रहे होते हैं। ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर है, ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर है। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर को हम सप्लाई ऑफ लेबर भी कहते हैं, और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर को डिमांड ऑफ लेबर भी कहते हैं। सो परफेक्ट कॉम्बिनेशन में इक्विलिब्रियम हमारा ई पी पे बनता है, जहाँ पे लाइक वेज रेट
W होगा, WP लिख देते हैं, चलें परफेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, और एम्प्लॉयमेंट QP होगी, ठीक है। और मोनोप्सनी फर्म क्या करती है, वहां पे इक्विलिब्रियम सेट करती है जहां MC MR को कट करते हैं इस पॉइंट पे E1 पे, लेट्स से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट हमारे पास इतनी होगी Q1 पे, और मोनोप्सनी एम्प्लॉयर वेजेस पे करते हैं जहाँ पे ये परपेंडिकुलर सप्लाई ऑफ लेबर को कट करते हैं, यहाँ पे W1 वेज रेट हो जाएगा मोनोप्सनी एम्प्लॉयर का। अब अगर ट्रेड यूनियंस इंटरफेयर करती हैं तो ट्रेड यूनियंस की इंटरफेरेंस की वजह से वो कह रहे हैं वेज बढ़ेगा, जब वेज W1 से ऊपर लेके जाएंगे, जब वेजेस ऊपर जाएंगे, यहाँ लेट्स से हम कहते हैं कि वेज W1 से W2 तक, यहाँ तक कहीं बढ़ गए W2 तक बीच में। सो आप देख सकते हैं मोनोप्सनी के केस में अब नई एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, फिर इतनी Q2 होगी। मोनोप्सनी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ गई Q1 से Q2 तक, परफेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट कम होगी QP से Q2 तक, ठीक है। सो दिस इज वाई बेसिकली in monopsony employment will rise and in perfect combination employment will fall. Question number 11, a backward sloping supply curve of labor is one where beyond a certain point the supply of labor falls, definitely supply of labor decreases if wage increases. सही है, so supply of labor will decrease as wage increases. So option C is the correct answer. इसका लेकिन होता क्यों है, जैसे सपोज करें this is backward bending supply curve. This is a certain point along the backward bending supply curve where wage rate is W and working hours are this much. Let's say this much. अब क्या होता है अगर वेज रेट W से ऊपर जाएगा, लेट्स से यहाँ पे चला जाता है W से W1 तक, तो फिर क्या होगा, वर्किंग आवर्स लोग कम कर देते हैं, H से H1 की तरफ कर देते हैं। सो यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व हमें ये बताता है कि जब वेज रेट राइज होता है तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है दैट डिक्रीजेस। सो ये जैसे सप्लाई ऑफ लेबर कम हो जाती है। अगर किसी किस्म की क्लैरिटी की फर्दर जरूरत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं फिर आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 सेज व्हाट इज इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम बेसिकली डेफिनेटली जो लो इनकम ग्रुप होता है उसको किसी सर्टेन रीजन में या किसी सर्टेन एरिया में प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी इनकम थोड़ी ऊपर आ जाए और इनइक्वालिटीज थोड़ी कम हो जाए, ताकि अमीर और गरीब को एक जैसी पेमेंट ही मिल रही होगी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक रिजल्ट ऑफ दिस, अगर यूनिवर्सल बेसिक पेमेंट्स गवर्नमेंट पे कर रही होगी तो रिड्यूसेस द इंसेंटिव टू वर्क। क्या रिड्यूस होता है वो काम का इंसेंटिव, लोगों को लगता है कि काम करने की जरूरत नहीं है, तो यस इंसेंटिव रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब फ्री में पैसे गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं तो काम करने की क्या जरूरत है, तो उनको इंसेंटिव टू वर्क रिड्यूस हो जाता है। C और D में से कुछ आंसर हो सकता है। इम्प्रूव्स इक्वालिटी, तो हाँ ये भी है बिल्कुल, क्वालिटी यस इम्प्रूव हो जाती है, तो ऑप्शन डी हम चूज कर लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सबको एक जैसे वेजेस दे रही होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड्स। सो डी आंसर हो जाएगा। Question number 13 is which combination of fiscal policy measures would be most effective in reducing income inequalities? So inequalities का मतलब है कि rich and poor have like wide kind of gap between their income. Rich are very rich and poor are very poor. That is called income inequality. So अब उस gap को reduce करने कैसे करना होगा reduce? टॉप टैक्स रेट प्रोग्रेसिव टैक्स के केस में हम लगाते हैं, लाइक जो हाई इनकम अर्नर्स हैं उनको हाई टैक्स रेट लगेगा, जो लो इनकम अर्नर्स हैं उनको लो टैक्स लगेगा। सो टॉप टैक्स रेट इंक्रीज करना चाहिए तो बिल्कुल करना चाहिए। सो इंक्रीज, सो ये दो ऑप्शंस हमने वैसे यहाँ से कैंसिल कर दी। इनडायरेक्ट टैक्सेस इनइक्वालिटीज को और बढ़ाते हैं, अगर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करना चाहिए। सो ऑप्शन ए वैसे फिल्टर आउट हो गया। वैल्यू ऑफ स्टेट बेनिफिट्स मतलब वही वेलफेयर पेमेंट्स होती, वो भी इंक्रीज करनी चाहिए। वेलफेयर पेमेंट डेफिनेटली लो इनकम अर्नर्स को मिलती, जब उन्हें कुछ वेलफेयर पेमेंट्स मिलेंगी तो उनकी इनकम ऊपर चली जाएगी, अमीर और गरीब की इनकम का गैप थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, एट प्रेजेंट motorists who drive their cars within area 1, this is area 1 on the map, pay a daily congestion charge of $8. So anyone who enters this area A, he or she has to pay $8 as a congestion charge on daily basis. Government is trying to definitely reduce congestion in this area.
सो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट इस तरह का करती है ताकि ट्रैफिक वहां पे कम हो, पोल्यूशन रिड्यूस हो सके. विच कार जर्नीज वुड decrease in number if the congestion charge area were extended to include area 2. ठीक है, सो एरिया 2 हमारे पास ये आ गया. दिस इज कंप्लीट एरिया 2. दिस एरिया इज कंप्लीट एरिया 2. शुरू में क्या था, एट एट द स्टार्ट अगर लोग एरिया एक्स से एरिया वाई में एंटर होते थे तो देर वॉज नो चार्ज. पर इफ दे एंटर दिस एरिया, एरिया वन, देन दे हैड टू पे द चार्ज. लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि अब एरिया टू में भी एंटर होने के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, कंजेशन चार्ज. सो अब क्या होगा, कार जर्नीज फिर ज़ाहिर एरिया टू में भी कम हो जाएंगी. कैसे, एक्स से वाई की तरफ लाइक जो मूवमेंट है उसमें नंबर ऑफ कार्स की मूवमेंट कम हो जाएगी. सो कार जर्नीज इसमें कम हो जाएंगी, एक्स टू वाई. ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15 says, what is most likely to lead to an increase in size of national income? ठीक है, इनमें से कौन सी चीज है जिससे नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी? अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स, यस, इसकी वजह से नेशनल इनकम इंक्रीज होती है. बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होगा? देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग पैसा बैंक में सेव करने की बजाय दे इन्वेस्ट इनटू द बिजनेसेस. सो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर पढ़ा हुआ है. मल्टीप्लायर हमें ये बताता है चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. सब इन्वेस्टमेंट जब आप बढ़ाएंगे तो नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज होता है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, लेकिन इनमें से कोई और ऑप्शन अगर आप कंफ्यूज कर रही हो तो आप कमेंट में लिखते हैं, आई एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. Question number 16 is, which government policy is most likely to improve occupational mobility? Occupational mobility is when people can easily move from one occupation to another. For example, if a teacher can easily move to the banking job, that is called occupational mobility, right? So if you want to improve occupational mobility, mean you are making the people easier to move to another jobs apart from the job they are already doing, then you will have to train them, right? So increased spending on education and training can make this happen, because when government educates and trains workers as per the new jobs, as per the new professions, then people can get education and training and move to the other basically professions. अब क्या है कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप एक ऑक्यूपेशन छोड़ के दूसरा, एक होती है जोग्राफिकल मोबिलिटी, कि आप एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं. उसके लिए तो ट्रांसपोर्ट सर्विस आपको इम्प्रूव करना होती है, उसके लिए आपको हाउसिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करना होती है. लेकिन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी में आपको लोगों को रीट्रेन करना पड़ता है ताकि नई जॉब के हिसाब से वो फिट हो जाए. Question number 17 is, the table shows marginal propensity to consume, marginal propensity to save, marginal propensity to tax, marginal propensity to import for four sector economy. फोर सेक्टर इकोनॉमी वो होती है जिसमें चार इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं: कंज्यूमर, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. व्हाट इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर? फोर सेक्टर इकोनॉमी में मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS प्लस MRT, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस marginal propensity to tax plus marginal propensity to import, right? So इस टेबल के हिसाब से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास है 0.2, ये यहाँ पे लिख देते हैं. प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स हमारे पास है 0.2, लिख देते हैं यहाँ पे. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट 0.1 है, वो भी लिख देते हैं. इन तीनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.5. 1/0.5 करेंगे तो ये आपके पास 2 आंसर आ जाएगा. कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. 1/0.5 को पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर हम 0 लगा देते हैं. 10/5 करेंगे तो 2 आ जाएगा. ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. What is likely to happen when the productive potential of a free enterprise economy increases over the long run? ओके, सो फ्री मार्केट या फ्री एंटरप्राइजेस का मतलब होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं एग्जाम में. ठीक है, सो ऐसा फिर कब होगा अगर प्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है? तो इसके लिए लाइक ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. इंडिविजुअल्स विल हैव मोर चॉइसेस ड्यू टू अ वाइडर रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, सो फ्री एंटरप्राइजेज में या फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, अगर प्रोडक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो लोगों के पास चॉइस ज़्यादा अवेलेबल होगी. ठीक है, अगर इनमें से कोई और ऑप्शन आपको कंफ्यूज करती है तो अगेन आप कमेंट में लिखते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू.
Question number 19 is the accelerator principle refers to the relationship between investment and the change in GDP. ये इसकी basic definition है. Accelerator होता है, accelerator का formula होता है change in investment over change in income. ये multiplier का opposite है. Multiplier का formula क्या होता है? Multiplier is K is equal to change in income over change in investment. Like multiplier में ये बताते हैं जब आप investment change करते हैं तो उसका income पे क्या impact जाता है. और मल्टी एक्सीलरेटर बताता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट पे क्या चेंज आता है. तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक तरह से. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज लाइकली टू बी द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और गवर्नमेंट की इनकम कम है. ठीक है. जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में बढ़ जाएगी. सो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता था एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. सो जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. बजट डेफिसिट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे होते हैं इसलिए एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अगेन अगर कोई कंफ्यूज करती है कोई और ऑप्शन तो आप चैट में लिख दें प्लीज. Question number 21, the table gives details of inflation and unemployment rates in different countries in 2008 and 2011. Which countries experienced a trade-off between the inflation and unemployment rate? ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप बिल्ड होता है. तो हम देख लेते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप किन कंट्रीज में बिल्ड हुआ है. ओके. सो कनाडा में अगर हम देखें इन्फ्लेशन रेट 2.38 से 2.89. इन्फ्लेशन रेट बढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा है. तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ है? बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. ट्रेड ऑफ का मतलब है एक चीज बढ़े तो दूसरी कम होनी चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है. तो ये ऑप्शन हमारी निकल गई कनाडा वाली. सो जहां जहां कनाडा आ रहा है उसको हम यहाँ से भी क्रॉस कर देते हैं. फ्रांस की तरफ आ जाते हैं. इन्फ्लेशन रेट हमारे पास 3.16 से 2.9 पे बढ़े. इसको ऐसे एरो की लगा दें कि ये इंक्रीज हुआ. अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8 से 9.68, ये भी बढ़ गया फ्रांस के केस में. ठीक है. सो इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है. इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है 3.16 से 2.29 पे कम हुआ है. और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गया 7.81 से 9.6. तो यहाँ पे ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करते हैं, एक चीज कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है. ट्रेड ऑफ का मतलब यही है एक चीज बढ़े दूसरी कम हो रही है, तो ये ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करते हैं. तो जहां जहां फ्रांस आ रहा है वो ऑप्शन सही हो सकते हैं. तो सी और डी अभी भी हम फाइनल नहीं है कि कौन सा आंसर होगा. जर्मनी में अगर आप देखें 2.75 से 2.48 इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है. इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो गया 7.6 से 5.9 पे. अनएम्प्लॉयमेंट भी रेट कम हो गई. तो दोनों चीजें कम हो रही है. ट्रेड ऑफ है बीच में नहीं है. अगर दोनों चीजें बढ़े साथ दोनों चीजें कम हो तो ट्रेड ऑफ नहीं होता. ट्रेड ऑफ होता है एक चीज बढ़ने से दूसरी कम हो जाए, एक कम होने से दूसरी बढ़ जाए. लास्ट ऑप्शन रहेगी. और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास के 1.37 से इन्फ्लेशन रेट -0.28 पे आ गए. इन्फ्लेशन रेट कम हो गया, बिल्कुल सही है. और 3.99 से 4.55 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया. तो यहाँ पे एक वेरिएबल नीचे गया एक वेरिएबल ऊपर गया. तो ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल करता है. सो जापान में भी ट्रेड ऑफ आ गया. सो हमें सही आंसर मिल गया. ऑप्शन सी हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा कि फ्रांस और जापान में ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स. Question 22 says which government policy would boost economic growth but not necessarily promote economic development. ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है? ग्रोथ होता है कि जब आपका जीडीपी इंक्रीज हो जाता है और डेवलपमेंट होता है जब आपका जीडीपी बढ़ने के साथ साथ आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बेहतर हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. सो इसमें कोई कंट्री है जिसमें ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं हो रहा होगा. सो वो कौन सा कंट्री? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एनकरेजिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ फिनाइट नेचुरल रिसोर्सेज. जो आपके पास लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने से ग्रोथ तो आपको मिल जाएगी क्योंकि जीडीपी कंट्री का बढ़ जाएगा जब आप नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करें. लेकिन उससे पोल्यूशन कॉज होगी. जब पोल्यूशन इंक्रीज होती है या फ्यूचर जनरेशंस उसके लिए रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फ्यूचर जनरेशंस का भी कम हो जाएगा. और उसकी एक्सट्रैक्शन की वजह से जो पोल्यूशन कॉज होगी वो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रिड्यूस करती है क्योंकि पोल्यूशन या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक मेन पार्ट होता है. बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकती? इसका सी आंसर इज करेक्ट आंसर. क्रिएटिंग अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ
अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए तो उससे ग्रोथ का भी हमें नहीं पता चलेगा कि हुई है या नहीं हुई, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी हमें पता नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा इंडिकेटर इसको इस ऑप्शन में उसने नहीं दिया। डाइवर्टिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग फ्रॉम इंडस्ट्री टू एजुकेशन, अगर आप इंडस्ट्री से एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं तो आपको डेवलपमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेहतर हो सकता है लोगों का, एजुकेशन के साथ साथ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंडस्ट्री से कम हो रही है तो ग्रोथ इसकी वजह से मे बी अफेक्ट हो सकती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती। इंट्रोड्यूसिंग टाइटर कंट्रोल ऑन एयर पोल्यूशन, टाइटर कंट्रोल का मतलब है कि गवर्नमेंट बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कॉज करने के लिए। तो एयर पोल्यूशन पे कॉज करने के वाले फैक्टर्स पे अगर आप टाइट होल्ड रखेंगे तो फिर उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ उससे अचीव होने का चांस नहीं है। सो ऑप्शन डी जो है वो आपके पास, क्योंकि फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो तो पोल्यूटर्स होते हैं, वो तो उन्होंने तो पोल्यूशन कॉज करनी होती है, वो तो मेजर पार्ट होता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेस का। और अगर गवर्नमेंट उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है तो डेफिनेटली फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्ट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ फिर उससे पॉसिबल नहीं होगी। Question 23 is which policy measure to encourage economic growth might be based on the concept of Laffer curve? Laffer basically इकोनॉमिस्ट था जिसने टैक्स पे काम किया था। ये आपका टैक्स वाला, ये आपको चीजें कुछ नॉलेज बेस्ड होती है, ये याद होनी चाहिए। सो लेफर का चूंकि टैक्स से ताल्लुक था तो ज़ाहिर है वो एक्सचेंज रेट को भी नहीं डिस्कस करता था, इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज को भी नहीं करता था, क्वांटिटेटिव रीजन से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो उसका ये कहना था कि टैक्स कट करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस अगर आप कम करेंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि टैक्स रेट जब आप कम करते हैं, डायरेक्ट टैक्स जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, बिजनेस पे जो प्रॉफिट पे लगता है टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया जो लोगों की इनकम पे लगता है, तो अगर इनकम टैक्स कम करेंगे तो लोगों को काम करने के लिए एनकरेजमेंट होगी, ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे और ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ को कॉज करेंगे। और अगर गवर्नमेंट बिजनेस पे इनकम टैक्स कम करेगी तो वो भी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। सो लेफर का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था वो टैक्सेस रेलिवेंट था, तो कट इन डायरेक्ट टैक्सेस is the concept relevant to level. So option A is the correct answer. Next, moving to question number 24. 24 says the exchange rate of an economy appreciates, जब exchange rate करेंसी का बढ़ता है, appreciate होता है, तो imports आपके लिए सस्ती हो जाती हैं क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। तो आपके लिए फिर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इम्पोर्ट्स जब आपके लिए सस्ती पड़ेंगी तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन फॉल कर जाएगी। सो ऑप्शन ए और बी में से कुछ हो सकता है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है कि जब आप दूसरी कंट्री से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपेंसिव इंपोर्ट करते हैं, तो वो फिर आपकी लोकल प्रोडक्ट्स के लिए सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, उनकी कॉस्ट को भी बढ़ा देता है। सो इसलिए ऑप्शन ए और बी में से कुछ हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या होगा, अगर एक्सचेंज रेट आपका अप्रिशिएट करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कंट्री में राइज हो सकती है फॉल होने की वजह। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लाइक जो हमारे पास इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन का तो आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होगी क्यों नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों राइज करेगी, जब आपकी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट करती है तो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीजेस। जब आपकी एक्सपोर्ट्स महंगी होंगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स ओवरऑल कम हो जाएंगी, लोग आपसे नहीं खरीदेंगे चीज़ें। सो एज अ रिजल्ट जो आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए लोगों को अनएम्प्लॉय करना शुरू कर देगी। क्वेश्चन नंबर 25 says के which characteristics are more commonly found in low income countries। देखिए लो इनकम कंट्रीज में आपके पास सेविंग रेशियो भी काफ़ी कम होती है, लोगों के पास इनकम इतनी नहीं होती कि वो ज़्यादा सेव कर सकें, तो सेविंग रेशियो लो होती है। सो ये दो ऑप्शंस हम निकाल देते हैं, ए और सी में से कुछ हो सकता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो ये भी बड़ी कम होती है, क्योंकि उनके पास लाइक जो कैपिटल होता है, मशीनरी टेक्नोलॉजी टूल्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनकी भी रेशियो बहुत कम होती है, और इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट हैज नॉट accompanied ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर लास्ट 25 years। ठीक है, सो आप ये देख लें बाकी सारी चीजें हैं जिन्होंने accompany किया इकोनॉमिक ग्रोथ को, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, कोई एक ऑप्शन है जिसने नहीं किया। तो क्या चीज हो सकती है वो, डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए को अगर हम देखें, एनालाइज करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को ये तो लाइक चीज कंपनी करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो रिसोर्सेज आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीट होते जाएंगे, क्योंकि आप ओवर यूज कर रहे होंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की खातिर, तो रिसोर्सेज आपके कम होते जाएंगे, तो ये तो होगा। इसको ऑप्शन को हम निकाल लेते हैं। डिक्रीज्ड इंटरनेशनल ट्रेड,
ये बात गलत है, क्योंकि नॉट वाला जो वर्ड है, लाइक अगर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो इंटरनेशनल ट्रेड तो बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी वैसे करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन, नॉट अकम्पनीड वाली बात गलत है, ये भी अकम्पनीड हुआ है, क्योंकि लोग ज्यादातर रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं ग्रोथ के साथ साथ। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेयर पोल्यूशन, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पोल्यूशन भी कॉज होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस वर्ड नॉट के हिसाब से। अगर नॉट का वर्ड ना होता तो बाकी सारी ऑप्शन सही थे, ये वाली ऑप्शन पे गलत होती। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम आ जाते हैं। When assessing income distribution in an economy, which change in the Gini coefficient suggests that country is distributing its income more equally? देखिए, जिनी कोएफिशिएंट बेसिकली रेंज करता है 0 से 1 तक। 0 का मतलब होता है परफेक्ट इक्वालिटी, परफेक्ट इक्वालिटी, और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, परफेक्ट इनइक्वालिटी। अगर आप 0 के करीब आते जाते हैं तो इनइक्वालिटीज कम होती जाएंगी, 1 के करीब जाते जाएंगे तो इक्वालिटी इनइक्वालिटीज बढ़ती जाएंगी। सो देख लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए फिर इसका। इट हैज मूव्ड क्लोजर टू 1। देखिए, 1 के क्लोजर जैसे जाएंगे तो ये तो इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा, इनइक्वालिटीज। एग्जामिनर कह रहा है कि मोर इक्वालिटीज कहाँ पे होंगी। इट हैज मूव्ड क्लोजर टू 0। अगर 0 के करीब आते हैं तो हम इक्वालिटी की तरफ मूव कर रहे थे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी अगर आपको कंफ्यूज करें तो उसका पूछ लीजिएगा चैट में लिख के, कमेंट्स में लिख। Question number 28 says that in 2021, a very large cargo ship carrying over 18,000 cargo containers blocked the Suez Canal for 7 days. Okay, so इस कार्गो ने क्या किया, सुएज कैनाल्स को ब्लॉक कर दिया। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इट डिलेड ओवर 350 अदर कार्गो शिप्स। इसकी वजह से 350 कार्गो शिप्स और भी डिले हुए, causing shortage of products in the market around the world as supplies were disrupted. Definitely, अगर supplies disrupt हुई हैं तो market तो affect होगी, world market, अगर ships अपनी timely delivery नहीं कर सके तो। Which consequence of globalization is best illustrated by this event? अब ये जो event है ये disturbing event है, like facilitating नहीं है, disturbing। सो ऑप्शन सी आपके पास आंसर हो जाएगा, इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज। क्योंकि अब देखें, कार्गो शिप्स जो दूसरी कंट्री से आ रहे थे वो अगर डिले हुए तो फिर आपकी कंट्री में भी सप्लाई रुक जाती है, तो इट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। सो इसकी वजह से लाइक ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और बाकी ऑप्शंस नहीं हो सकती। चीपर प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइसेस तो बढ़ जाएंगी, जैसे अभी सप्लाई भी अफेक्ट हुई, सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और ओवरऑल वैसे भी ज़रूरी नहीं होता कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोडक्ट्स चीपर हों, पॉसिबिलिटी होती है, ज़रूरी नहीं होती। बाकी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, अगेन कंफ्यूजन हो तो चैट में लिख दें, कमेंट्स में लिख दें, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आते हैं। द टेबल शोज डाटा फॉर नेमीबिया एंड स्पेन फॉर 2014 एंड 2000 to 2017. What can be concluded about whether there has been an increase in economic growth and economic development in Namibia and Spain during 2014 to 17? देखिए, आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पहले भी मैंने बताया था, जीडीपी जब बढ़ता है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी साथ बढ़े तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। सो देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस कंट्री में हुई है। सबसे पहले नामीबिया ओनली की बात करें तो नामीबिया में आपके पास जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6,113 से 6,013 पे आ गई, तो जीडीपी इसका कम हुआ है। आगे हेल्थ स्पेंडिंग की तरफ देखें तो हेल्थ स्पेंडिंग भी कम हुई है। तो अगर आप जीडीपी कम हो रहा है तो ग्रोथ रुक रही है, ठीक है, और अगर हेल्थ स्पेंडिंग कम हो रही है तो डेवलपमेंट भी रुक रही होगी। सो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि नामीबिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें नहीं हुई। आगे ऑप्शन बी की तरफ आते हैं, स्पेन ओनली। ओके, सो स्पेन का देख लेते हैं कि स्पेन में क्या हुआ। स्पेन में अगर देखें जीडीपी आपका 29,399 से बढ़ के 32,280, तो इससे ग्रोथ हुई है, तो बिल्कुल ग्रोथ बढ़ी है यहाँ पे। लेकिन क्या स्टैंड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है? देख लेते हैं। अब जो हेल्थ स्पेंडिंग है 2,671 से 2,506 कम हो गई है।
हेल्थ स्पेंडिंग कम हुई है तो डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ा होगा, डेवलपमेंट कम हो जाएगी। ओके, सो ऑप्शन बी भी हमारे पास फिर गलत हो जाएगा कि ग्रोथ तो स्पेन में हो रही है, ग्रोथ तो बढ़ गई, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और द नेक्स्ट पार्ट इज कि इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्ड इन स्पेन, तो हाँ वो में नजर आ गया, स्पेन में इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल हुई है, जीडीपी बढ़ गया। और सेकंड वो कह रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन नीदर कंट्री, तो ये बात भी ठीक है कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगा, हेल्थ स्पेंडिंग इसकी भी कम हो रही है, इसकी भी कम हो रही है, तो दोनों का HDI कम हो जाएगा, और लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज कर जाएगी जब आप स्पेंडिंग करें हेल्थ के ऊपर, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो जाएगी, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्लाइन कर जाएगा। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में नहीं हुई, लेकिन हाँ ग्रोथ हमें नजर आई है, स्पेन के अंदर ग्रोथ हुई है, तो ऑप्शन सी को हम चूज कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज वेरी बिग, तो आप इसको देख लें, एक दफा पढ़ लें अच्छे से। द डायग्राम shows the human development index HDI and its component parts in Zimbabwe. So ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, शुरू में नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहे हैं, और एजुकेशन कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, और अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कम है फिर ऊपर गई, और ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी। ठीक है, सो इसको, इनको ग्राफ्स को थोड़ा सा देख लें अच्छे से, मैंने इसको जूम आउट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, या फिर इसको वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ लें। नाउ मूविंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चंस। Question: Between 2000, between year 3 to 7, which components of HDI have comparable changes to its overall change? ओवरऑल चेंज अगर देखें HDI में क्या थी, देखें ओवरऑल चेंज थी 3 से 4 ईयर्स तक, वो कह रहा है 3 से 7 ईयर, सॉरी, 3 ईयर 3 से ईयर 7 तक अगर हम देखें, तो ये हमारे पास मूवमेंट है। देखें बड़ा आसान तरीका होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट के साथ ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन के साथ, इससे आपको पता चल गया जो भी ओवरऑल चेंजेस थी उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ, इंक्रीजिंग है, यानी HDI हमारे पास इंक्रीज कर गया। और इसी तरह से बाकी का भी आप देख लेंगे कौन सा कंपेरेबल है इसके साथ, कौन सी चीजें हैं जो इसके साथ जा रही हैं। अगर हम इसको देखें ईयर 3 से लेके ईयर 7 तक अगर हम देखें, तो इसका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जब हम इसका लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ रही है, या कांस्टेंट है थोड़ी, नीचे की तरफ ही वैसे आ रही है। ओके, और इसका देखें, ये तो ये उसके साथ नहीं जा रहा, उसके लाइक कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये HDI को ऊपर ले जाने के लिए नहीं, नीचे ले जाने के लिए कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो ईयर 3 से 7 तक अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो ये बढ़ रही है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बेहतर करेगी, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अगेन इसमें भी क्या करेंगे, ईयर 3 में आपके पास जो पॉइंट था और ईयर 7 में, इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास इसमें भी अपवर्ड मूवमेंट है। सो ये दो चीज़ें हैं जो इसके साथ जा रही हैं, और ये चीज़ नहीं जा रही, तो हम कहेंगे एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये दो चीज़ें हैं जो HDI के साथ कंपेरेबल हैं, HDI के चेंजेस के साथ। सो एजुकेशन GNI एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल नहीं, क्योंकि GNI तो नहीं है इसका पार्ट। एजुकेशन एंड GNI पर कैपिटा, ये भी नहीं, GNI जहाँ जहाँ आ रहे हैं वो आप कैंसिल करते जाएं। एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको, GNI जहाँ पे आ रहे हैं इसको खराब कर दें, गलत कर दें इसको, क्योंकि GNI तो डेवलपमेंट इंडेक्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन ये दो चीज़ें हैं जो इसके साथ जा रही हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होगी। इफ देर इज एनी इशू आप यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, इन द चैट, और मैं इंशाल्लाह जैसे ही आई गेट टाइम आई गेट बैक टू यू। और फर्दर अगर आप लोगों की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है दैट इज +92 333 4429 673, ये आप लिख लें, और इस पे आप मुझे भेज सकते हैं, तो ताकि मैं फिर अकॉर्डिंगली वीडियो आपके लिए बना लूँगा। और बेटर है कि अगर आप यहीं पे चैट में लिख दें जो भी आपके इश्यूज हैं, वो फिर मैं अकॉर्डिंगली आई ट्राई कि मैं आपके लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके आई मेक वीडियो फॉर दैट एंड शेयर इट विद यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह सी यू अगेन, और बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर अपकमिंग CAIs like March, for March students as well as for May June 2024 students as well. So see you in the next video. Allah Hafiz.